Yesterday we were discussing about discount, that what is discount, especially cash discount, and how it is recorded. So I'm going for some other entries, like how cash discount will be encountered. First of all, I must recall about yesterday class. In yesterday class, I discussed when a transaction contain word cash discount. So you have to calculate the cash discount. Moreover, after calculation of cash discount, it would be recorded. There is a separate discount column. There is a separate discount column in the cash book. So you have to record the discount in cash in a separate column as well. So I told you there were two discount allowed and discount received. So if you are receiving cash, you will debit the discount. If you are paying the cash, you will credit the discount. If you are receiving money through bank, you will debit the discount. So it's recorded along bank and cash. Whatever is done with the bank and cash, same treatment is done with the discount. Okay. So how he will encounter cash discount, yeah, how he will identify cash discount. There are some other transaction as well. Let's discuss those transactions with you. ABC paid his account, i.e. $600 by giving us tissue पे लेकर आएगा by giving us check of $500 in tissue पर लगलू नहीं खाया पड़ा in full settlement. ठीक है. ABC paid his account, i.e. 600, by giving us check of $500 in full settlement. Account means balance. अकाउंट का मतलब क्या है? बैलेंस, यानी उसका बैलेंस कितना था, उसका ड्यू अमाउंट कितना था. तो अकाउंट शो करता है बैलेंस को कि ये उसका ड्यू अमाउंट था, ये उसका बैलेंस था. तो उसने हमें चेक दिया है 500 का, और फुल सेटलमेंट का मतलब है बाकी पैसे हमने उसको छोड़ दिए. बाकी पैसे हमने, फुल सेटलमेंट का मतलब हमसे और पैसे लेंगे ही नहीं. मतलब एक बंदे को अगर 600 रुपए ड्यू थे, इफ समवन इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ 600 एंड वी आर सेइंग कि गिव अस ओनली 500, वी डोंट वांट टू रिसीव अदर अमाउंट. इसका साफ मतलब क्या है? हम उसको पैसे छोड़ रहे हैं, हम उसको पैसे माफ कर रहे हैं. So if you see the word full settlement, this means this is a cash discount. This means this is a cash discount. तो इसका करना क्या है? हमें चेक मिल रहा है या हम चेक दे रहे हैं? ABC paid us check. हमारे पास चेक आ रहा है या चेक जा रहा है? We are getting the check. We are getting in the check. So I will debit the bank with 500. I will debit the bank with 500. Moreover, there is a discount. So how we will treat the discount? 600 minus 500. The remaining amount is the discount. Okay. Just wait, beta. Just wait. Just wait. Discount allowed is not the liability and it's not an asset. Discount जो है वो इनकम होता है या एक्सपेंस होता है. डिस्काउंट जो है या तो इनकम होता है या फिर एक्सपेंस होता है. अगर डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस के बारे में दो बातें आती हैं. एक, हम किसी की एक्टिविटीज लें और उसके अगेंस्ट पेमेंट करें. जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा वेजेस. तो वेजेस क्यों एक्सपेंस है? यू आर गेटिंग लेबर फ्रॉम समवन. कोई बंदा आके पियोन बन जाता है, कोई बंदा आके प्रोडक्शन का काम करता है, आप उसको वेजेस पे करते हैं. सैलरीज, someone is providing some admin services or any type of professional services, आप सैलरी पे करते हैं. तो जब किसी की सर्विसेज आप हायर करते हैं और आप उसको उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं. इवन अगर आप कोई चीज बाय करते हैं तो वो भी एक्सपेंस कहलाता है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. दैट इज नोन एज एसेट. एसेट भी एक तरह का एक्सपेंस होता है, लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है, तो उसको हम अलग कैटेगराइज करते हैं. ठीक है. अच्छा जी. अच्छा, उसके अलावा सर आगे आ जाएं. एक्सपेंस जरूरी नहीं है, कि उसमें आपके पैसे जाएं. जैसे वेजेस है, वेजेस में आप पैसे देते हैं. सैलरीज है, सैलरी में आप पैसे देते हैं.
Could you try again? Who is there, बेटा? Shida, बेटा, हाँ. ये किसने बोला? I didn't catch that. So बेटा ने, Here's what I found. wait, there is a problem. I was telling, एक्सपेंस में हम क्या करते हैं, किसी की सर्विसेज हायर करते हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, इन सब में आप बिजनेसेस किसी की सर्विसेज लेते हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं। लेकिन एक्सपेंस में जरूरी नहीं है पैसे जाएं। समटाइम अगर आपको लॉस हो रहा है, लिसन टू मी, समटाइम आपको लॉस हो रहा है तो ये भी एक्सपेंस है। आपको एक बेनिफिट मिलना था और आपको नहीं मिल रहा तो ये भी एक्सपेंस है। यू हैव टू रिसीव 600, आपको 600 लेने थे and you are receiving just 500, 100 you are not able to receive, आपको आपने छोड़ दिए, आपने माफ कर दिए, तो ये एक किस्म का लॉस है और इसको प्यार से हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो अकाउंटिंग में अगर कोई पोटेंशियल लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है तो वो भी एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है? ये हमारा एक लॉस है, हम अमाउंट कम रिसीव कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा, नॉट द लायबिलिटी। और डिस्काउंट रिसीव जो है वो एक किस्म की इनकम है, क्योंकि आपको बेनिफिट होता है, आपके पैसे सेव हो जाते हैं, आपका अमाउंट सेव हो जाता है, आपका कैश सेव हो जाता है, तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है। इसीलिए वो क्रेडिट साइड पे आता है जो डिस्काउंट रिसीव है, और जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट साइड पे आता है। और इनके सेपरेट टी अकाउंट्स भी बनते हैं, इनके सेपरेट टी अकाउंट्स भी बनते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। हैव यू गॉट दिस थिंग शिजा बेटा, कि डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट रिसीव क्या है? ठीक ठीक ठीक। सो गाइज, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं कि डिस्काउंट को हम कैसे मैनेज करेंगे। एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। एबीसी पेड his account, i.e. $500 by giving us a check, less 10% कैश डिस्काउंट। दोबारा सुनिएगा, इसमें कह रहा है कि एबीसी पेड हिज अकाउंट, अकाउंट का मतलब उसका बैलेंस, उसका ड्यू अमाउंट, उसका बैलेंस, उसका ड्यू अमाउंट। तो उसका बैलेंस कितना था? 500 था। उसका बैलेंस कितना था? 500 था। बाय गिविंग अस अ चेक, चेक के आगे कोई फिगर नहीं है, ये हमें तलाश करनी पड़ेगी। चेक के आगे कोई फिगर नहीं है, ये हमें तलाश करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसने क्लू दिया है कि जो पैसे उसने दिए थे वो 10% कैश डिस्काउंट माइनस के दिए। तो कभी कभार पेपर में ऐसा होगा कि डिस्काउंट आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि चेक की फिगर नहीं दी होगी, बैंक की फिगर नहीं दी होगी, तो डिस्काउंट आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। डिस्काउंट मालूम करने के बाद बैंक की फिगर पता लगेगी। तो जब भी डिस्काउंट मालूम करना हो, आपने हमेशा डिस्काउंट की परसेंटेज ओरिजिनल अमाउंट पे अप्लाई करनी है, जो अकाउंट का बैलेंस है उस पर अप्लाई करनी है, नॉट ऑन चेक। कभी कभार वो आपको चेक की रकम भी दे देगा और आपको डिस्काउंट की परसेंटेज भी बता देगा। तो जब भी हमें डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, परसेंटेज गिवन है, ये तो 10% है, पर वैल्यू में कितना बनेगा? 50 बनेगा, 100 बनेगा, 10 बनेगा, कितना बनेगा? तो डिस्काउंट की परसेंटेज आपने ओरिजिनल अमाउंट पे अप्लाई करनी है, जो कि कितना है? 500 है, 500 है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ओरिजिनल अमाउंट 500 है, उस पर लगाएंगे 10%, उस पर लगाएंगे 10%, और 10% लगा के कितना आएगा? 50 आएगा। 10% लगा के कितना आएगा? 50 आएगा। तो हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितना बनेगा? वो 450 बन जाएगा, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो चेक की अमाउंट है। ओरिजिनल अमाउंट तो ये था, सॉरी, ओरिजिनल अमाउंट 500 था, 10% हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है। डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो बैंक की फिगर होगी। तो बैंक की फिगर अगर नहीं दी हो तो नो इशू, आपको जो ओरिजिनल अमाउंट दिया उस पर परसेंटेज लगाएं और परसेंटेज लगा के डिस्काउंट फाइंड करें, वो माइनस करके आपके पास बैंक की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना है बैंक? 450। तो हम क्या करेंगे सर? हमने 450 का चेक रिसीव किया है, 450 डेबिट करेंगे और जो डिस्काउंट की रकम है वो डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे। हैव यू गॉट दिस थिंग? जी गाइस, हैव यू गॉट दिस थिंग यहाँ तक? Yes. अच्छा बेटा, एक और भी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें डिस्काउंट
यानी ओरिजिनल अमाउंट नहीं दी होती, उसमें फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो अभी मैं नहीं सिखा रहा, पहले हम एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं सिखाऊंगा। ठीक है? अच्छा, तो पहले हम एक सवाल कर लेते हैं, जरा इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सिखाऊंगा एक और ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट के लिए रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो फिर मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी हम एक सवाल ट्राई कर लेते हैं कैश बुक का। एक मिनट वेट करें, मैं दूसरी बुक ओपन करता हूँ, जस्ट वेट। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, हमारा टाइम जाएगा। बताते हैं ना पहले बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट डाउन द बैलेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि पांच दफा हम स्क्रैच से काम नहीं करते, बिगनिंग से काम नहीं करते, तो आपको बैलेंस दिया होगा। तो बैलेंस जो है वो हमेशा पहली तारीख पे होता है। ठीक है? अच्छा, एक मिनट कीजिएगा, मैं इसको दूसरी जगह ओपन कर दूँ। ओके। तो बैलेंस जो होता है वो हमेशा एज अ बैलेंस बीडी के तौर पे आ रहा होता है। तो ये लिखा हुआ है, ऑन 1 अगस्त 2017 शाहिद हैड फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज कैश बुक। तो ये कैश का बैलेंस है। कैश का बैलेंस किस साइड पे आता है गाइस? कैश का बैलेंस डेबिट। ऑन डेबिट साइड, शाबाश। और ये बैंक का बैलेंस है, किसने लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसने लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट। ओके ओके, शाबाश बेटा। तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, रोटेट पिच। ओके, तो ये हमारे पास कैश बुक है, पेपर में कैश बुक बनी हुई होगी। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड पे कैश का बैलेंस लिखेंगे। कैश का बैलेंस 50 था, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा कैश का बैलेंस 50। ठीक है? और यहाँ लिखूंगा बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखूंगा 1 अगस्त। ठीक है? उसके बाद इसने बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो कितना है, 7150। मैं क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, दिस इज द क्रेडिट साइड, मैं लिखूंगा 7150। यहाँ रेफरेंस में लिखूंगा बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखूंगा 1 अगस्त। हैव यू गॉट दिस थिंग? ये हमने बैलेंस लिखे हैं। तो बैंक का बैलेंस, अच्छा कैश का तो डेबिट साइड पे ही आता है, बट बैंक का अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो या बैंक के आगे क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो वो क्रेडिट पे जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? इज इट क्लियर? यस। मुझे क्वेश्चन कुछ और करवाना था, ये थोड़ा सा वो है, पास पेपर का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग के पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। A check received in July for 362 from EN Supplies was dishonored by the bank. Dishonored चेक क्या होते हैं, मैंने आपको ये नहीं बताए थे। ये वो चेक होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हम चेक रिसीव करते हैं, हमें कोई कस्टमर चेक देता है तो हम चेक रिसीव करते हैं। तो जब हम चेक रिसीव करते हैं तो हम बैंक को करते हैं डेबिट। ठीक है? और जिस बंदे ने वो चेक दिया है, फॉर सपोज उसका नाम ईएन था, उसको कर देते हैं क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव चेक, सबसे पहले हम माल सेल करते हैं, देन उसके बाद चेक रिसीव करते हैं। तो जब चेक रिसीव करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, ये एंट्री होती है। अब मसला ये होता है, पुराने जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था, पुराने जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, तो लोग चेक रिसीव करने के बाद क्या करते थे, बैंक जाके कैश करवाते थे। बैंक में जाके वो चेक प्रेजेंट करते थे और उसके अगेंस्ट कैश लेते थे। ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में मैं अगर आपको रियाल दूं, तो दुकानदार आपसे कभी रियाल नहीं लेगा। आप बैंक जाएंगे या मनी एक्सचेंज वाले के पास जाएंगे, उसको रियाल देंगे, उससे रुपीज लेंगे। ठीक है? तो लोग क्या करते थे, बैंक जाके वो चेक प्रेजेंट करते थे और उसके अगेंस्ट पेमेंट लेते थे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेमेंट मिल जाती थी। लेकिन बाज दफा चेक के अंदर अगर प्रॉब्लम है, डेट सही नहीं है, या वो चेक में साइन सही नहीं है, या वो चेक में अल्ट्रेशन हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, किसी ने पेन से लिखा है, मतलब ओवर राइटिंग की गई है, तो बैंक वाले फिर कैश नहीं देते। बैंक वाले चेक रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा चेक जो रिजेक्ट हो जाए, हमें क्या करना है फिर? तो हमने पहले बैंक को डेबिट किया था, हुई थॉट, हुई अज्यूम, हुई गॉट द बैलेंस।
देयर इज इंक्रीज इन अवर बैंक बैलेंस, और हमने ईएन को क्रेडिट किया था बिकॉज वो हमारा एसेट था, उसने पैसे दे दिए तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट। लेकिन अब अगर चेक रिजेक्ट हो गया है, चेक कैंसिल हो गया है, तो इट मींस आपके बैंक में तो पैसे आए ही नहीं। आपने ये अज्यूम किया कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। और आपने ये अज्यूम किया कि भाई ईएन का बैलेंस खत्म हो गया, आपने उसको क्रेडिट किया, तो भी ये भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे पैसे ऑनलाइन कर दें और बाद में पता चले कि पैसे ऑनलाइन नहीं हुए, रिटर्न हो गए, तो मैं आपसे दोबारा पैसे मांगूंगा या बोलूंगा कोई बात नहीं छोड़ दो? जी गाइस, You will ask. I will ask it again. I will ask it again. I will say kindly do try once more. Do try once more. पैसे रिसीव नहीं हुए, दोबारा ट्राई करें, मिल जाएंगे मुझे। सो सेम इज इट इज एज इट इज, हमने पहले बैंक को डेबिट किया, हुई थॉट कि हमारे पास पैसे आ गए और हमने ये इनको क्रेडिट किया, हमारा कस्टमर था वो रिड्यूस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम ये पूरी एंट्री रिवर्स कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिसऑनर्ड चेक। जो रिजेक्टेड चेक होते हैं उसको हम डिसऑनर्ड चेक बोलते हैं। ऑनर मींस इज्जत देना, डिसऑनर्ड मतलब बेइज्जती हो गई आपकी। सो इसमें क्या होगा, जो ई एन है वो हो जाएगा डेबिट और आपका बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो डिसऑनर्ड चेक जब भी आप देखें आपने बैंक को क्रेडिट करना है। डिसऑनर्ड चेक मींस आपको अपने बैंक बैलेंस को रिड्यूस करना है, चेक कैंसिल हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, बैंक को करेंगे क्रेडिट 362 से। मैं घर पे क्लासे ले रहा हूँ तो ये मसला इसलिए हो रहा है, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। सो आई एम वेरी सॉरी। सो हम बैंक को करेंगे क्रेडिट और रेफरेंस पे लिखेंगे ई एन सप्लाईज, और डेट हम लिखेंगे 9 अगस्त। ये आपको मैं बैंक बैंक डिसऑनर चेक के बारे में लिखवा दूंगा वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलो। पेड 54 बाय चेक फॉर फ्यूल ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल, व्हाट डू यू से, क्या होगी इसकी? Can you repeat? Paid $54 by check for fuel of private motor vehicle. Private means ऑनर की पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए। One is business vehicle and one is Bank private vehicle. credit. तो बैंक क्रेडिट, पैसे जा रहे हैं, हम बैंक क्रेडिट करेंगे, ओके। What would be the reference for private motor vehicle? Private, private use, own use, self use, याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था ना, Drawing. ड्राइंग्स, शाबाश, ड्राइंग्स। हम मोटर व्हीकल नहीं लिखेंगे because this expense is not incurred on business vehicles. This expense is incurred personally. ऑनर ने अपनी जात पे इस्तेमाल किया है इसका, अपनी प्राइवेट कार में इस्तेमाल किया है। तो जब भी प्राइवेट का वर्ड यूज आए, प्राइवेट का वर्ड यूज आए, पर्सनल का वर्ड यूज आए, आपके जहन में दूसरा अकाउंट ड्राइंग्स आना चाहिए, ड्राइंग्स आना चाहिए। तो इट्स 18 अगस्त, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 अगस्त। ओके, आगे चलते हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम मरियम, चेक कितने का था नहीं बताया, नहीं बताया। टू सेटल हर डेट, डेट ऑफ 520 का मतलब ये होता है ये उसका अकाउंट है, ये उसका बैलेंस है, इट इज हर बैलेंस, इट इज हर टोटल अमाउंट, इट्स हर टोटल अमाउंट। ठीक है, ये उसका बैलेंस, ये पैसे दिए नहीं उसने, ये देने थे उसको। 520 इज द अमाउंट विच शी हैज टू पे, लेकिन उसने क्या किया, 2.5% कैश डिस्काउंट हासिल किया। 2.5%, 2.5% ना, बाकी पैसे दे दिए उसने हमें बाय चेक। तो इसमें चेक की फिगर नहीं बताई गई, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन चेक। तो चेक की फिगर आपको बतानी होगी क्या है। 520 इज द टोटल अमाउंट, ये नहीं दिया उसने हमें, इसमें से कम दिया है, 2.5% माइनस करके दिया है। तो यू हैव टू टेल मी हम बैंक को क्या करेंगे और डिस्काउंट में कितना जाएगा, तो कितना अमाउंट जाएगा बैंक। जी गाइस, Bank account is debited.
Yes. Amount. What would be the amount? 520. No, beta. There is 2.5% discount. You have to deduct the discount first. It is written her dad. Her dad. That means account. That is not the amount which she has done the payment. ये वो अमाउंट नहीं है जो उसने पे किया है, ये तो टोटल अमाउंट है, उसको पे करना था, लेकिन वो जल्दी दे रही थी तो हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो 2.5% निकालें 520 का, से 2.5% कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 517.5. it would be 5.2 and 5.2 and half। बताएं कितना हुआ? 520 into 0, 520 into 2.5 डिवाइड बाय 100 करके देखें कितना आ रहा है। 520 into 2.5 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 13. 13। ओके, हम 13 माइनस कर देते हैं। 13 माइनस कर देते हैं। द रिमेनिंग अमाउंट इज 507. 507। तो 507 would be recorded in the bank account and 13 would be recorded in the discount. We are receiving the check, ठीक है, और रेफरेंस में क्या आएगा? मरियम। और डेट कौन सी आएगी? डेट इज 24। हैव यू गॉट दिस? ये वाली बात समझ में? ये मैंने बताया था ना अभी आपको लास्ट टाइम कि हमारे पास समटाइम चेक की फिगर नहीं दी हुई होगी, हमें अकाउंट की फिगर दी होगी, डिस्काउंट की परसेंटेज दी होगी, ठीक है? हैव यू गॉट दिस थिंग? यहाँ तक बात क्लियर हुई? Yes. चले हम आगे चलते हैं। अच्छा जी बेटा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 27। समटाइम दो ट्रांजेक्शन दी जाती हैं, लिखा हुआ है पेड 400 बाय चेक, ओके, बट द प्रॉब्लम इज इट वाज देयर वाज डबल पेमेंट। हमने दो पेमेंट्स की थी। एक पेमेंट जो थी 365 की, वो हमने ऑफिस इक्विपमेंट बाय किया था उसकी थी। ऑफिस इक्विपमेंट से मुराद कंप्यूटर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट से मुराद स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, पर हम रेफरेंस में ऑफिस इक्विपमेंट ही लिखते हैं। तो ये जो 400 है, इसमें से 365, ये जो 400 है, इसमें से 365 जो था वो हमने ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर लगाया, ठीक है? ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर लगाया, मतलब हमने ऑफिस इक्विपमेंट बाय किया, ओके बेटा? और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है, एंड द बैलेंस वाज फॉर रिपेयर्स, हमने रिपेयर्स के ऊपर किया। मतलब जाहिर है हमने कोई काम वाम करवाया होगा, पुराने जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर काम करवाया होगा, तो ये हमने रिपेयर के ऊपर लगाया, ठीक है? तो इसको सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? द प्रॉब्लम इज ऑफ रेफरेंस। हम जब भी कोई अमाउंट लिखते हैं उसके आगे रेफरेंस लगाते हैं, प्रॉपर रेफरेंस यूज करते हैं। तो इसमें जो 365 है, ये पेमेंट है, ये दोनों पेमेंट है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 365 की हमने पेमेंट की थी, तो हमने चेक दिया था, तो 365 हम बैंक में कर देंगे क्रेडिट। रेफरेंस में लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है? बाकी जो पेमेंट थी वो रिपेयर की मद में थी, हमने कोई रिपेयर का काम करवाया था। रिपेयर एक एक्सपेंस है, ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट है, तो रिपेयर का अकाउंट अलग बनता है, ठीक है? इसीलिए हम अलग से लिखेंगे जो बाकी अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है। ये ऐसा है, किसी ने आपको 400 रुपये दिए और बोला कि 365 रुपये आपके अपने हैं और बाकी रुपए किसी और के हैं, तो आप क्या करेंगे? उसी वक्त उसको अलग कर देंगे। 365 इज योर ओन अमाउंट, आप उसको साइड पे कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट किसी और का है तो आप उसको अलग पॉकेट में रखेंगे, क्योंकि आपने देना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट इज अ सेपरेट थिंग, वो आपका एसेट है, नॉन करंट एसेट है। और रिपेयर आपका नॉर्मल एक्सपेंस है जो कि इनकम स्टेटमेंट में आता है, तो उसका अलग अकाउंट बनता है। तो मुझे बता सकते हैं 400 में से 365 आउट ऑफ 400, 365 इज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, रिमेनिंग अमाउंट वुड बी ऑफ रिपेयर। वो कितना होगा? जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिपेयर का है, वो कितना होगा? सर 400 में से 365 माइनस कर दें,
So the answer would be 35. तो 35 किस में जाएगा? रिपेयर में जाएगा. मैं दोबारा रिपीट कर दूं. 400 was a total amount. तो 400 में से 365 माइनस कर दें तो आपका रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 35, जो कि रिपेयर में जाएगा. ठीक है. कैश सेल्स 3224, क्या करेंगे इसका? कैश सेल्स 3224 क्या करेंगे? महा बेटा आप भी बताएं. शीजा बेटा रेफरेंस भी बताएं क्या आएगा. ओके. महा बेटा, इफ यू आर देयर. ओके ओके. I'm saying how we will record cash sales 3224. How we will record this? What should be debited or credited? And what would be the reference? डेबिट किसे करेंगे, कैश को या बैंक को? शाबाश. हम कैश को डेबिट करेंगे. कैश आ रहा है तो कैश के अकाउंट में जाके लिखेंगे 3224. 3224 उसके रेफरेंस पे लिखेंगे सेल्स. और डेट कौन सी है? 30 अगस्त. ठीक है. 30 अगस्त. सही. आगे चलते हैं. अच्छा आगे चलते हैं. आगे कह रहा है पेड ऑल द रिमेनिंग कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट $100. इसको जरा समझिएगा. पेड ऑल द रिमेनिंग कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट $100. बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जब कैश आता है वो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं. जब भी कैश आता है यानी एक्सेस कैश होता है, चोरी होने का खतरा होता है, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते शॉप पे, तो हम जाके उसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में. कैश लोग नहीं रखते अपने पास. अगर आपको आज कोई आके बोले कि यू गॉट अ प्राइज और आपको 1 लाख रुपीज देते हैं, 1 लाख रियाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है इट्स अ ह्यूज अमाउंट. आप उसको बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे कि ये लग जाएगा, ये खर्च हो जाएगा. आप उसे जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे. तो इसमें होता क्या है, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा. बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट. डेबिट हो जाएगा. ठीक है. बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? अमाउंट कितना था कैश का? इसलिए लिखा है पेड ऑल द रिमेनिंग कैश एक्सेप्ट $100. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिमेनिंग कैश फाइंड करना पड़ेगा. रिमेनिंग कैश. 3224 minus 100. नो नो Will बेटा. we do that? No, no, no. We will, first of all, we have to see how much cash was available. 50 rupees cash is there and 3224 cash is there. There were two amounts, 50 and 3224. Can you tell me what was the total amount available? 3274 So out of 3274, we left just minus 100. We just left 100 and remaining amount was put it into bank account. 3174. Shabash. So 3174. We will credit the cash with 3174, reference of bank, and we will debit bank with 3174 with reference of cash. And date is 31. That is August 31st. Okay. Now what we have to do, we have to total it. First of all, come to cash. So cash account is there. Just see transactions. So this one. बल्कि सारे ही कर देता हूँ. Why you are doing this? ठीक है. और पैरेलल में यहाँ भी करूँगा. ओके.
How much cash is there? 50 plus 3224, 3274, 3274. इसमें से ये माइनस करें 3174, रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 100. इसके आगे हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, और इसके बिल्कुल अपोजिट हम 100 नीचे लिखेंगे टोटल के बैलेंस बीडी. डेट आएगी 31 अगस्त और यहाँ आएगी 1 सितंबर. ठीक है. सेम गोज टू अपना बैंक कॉलम. बैंक में आप देख रहे हैं कौन सी साइड हायर है, ये वाली या ये वाली? दिस साइड इज हायर और दिस साइड इज हायर. आई थिंक क्रेडिट साइड इज हायर. व्हाट डू यू से? कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? I think so, credit side, because 507 plus 3174, it will become around 3600 something. और ये वाली साइड में 7000 है, then 300 है, then 54 है, then 365, ये ज्यादा है. सो जो हायर साइड होती है वो वाला टोटल लिखते हैं. ठीक है. तो क्रेडिट साइड हायर है, इसका टोटल कर लें, इसका लिखेंगे. तो आप इन सबको प्लस करें, इट वुड बी अराउंड 7966. 7966. और जो लोअर साइड है उसका डिफरेंस निकालें. कैसे निकालेंगे? 7966 माइनस 507 माइनस 3174, कितना आ जाएगा? Kindly do write in, kindly send me in chat box. It's 4285. 4285. Okay. 4285. We will write balance CD over here. And same we will write balance BD over here on opposite side. 4285. 4285. ठीक है. एंड डिस्काउंट का भी टोटल कर लेते हैं. ओनली डिस्काउंट आउट इज देयर, एज इट इज टोटल लिखते हैं उसका. उसको बैलेंस बीडी सीडी नहीं करते. डिस्काउंट का बैलेंस बीडी सीडी नहीं किया जाता, बिकॉज बोथ डिस्काउंट आर डिफरेंट. दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. जबकि ये कैश की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. सो डिस्काउंट का सिर्फ टोटल करते हैं, उसका बैलेंस नहीं करते, ओनली टोटल. और वो सेपरेट सेपरेट होता है, हायर की पीछे नहीं बात. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन इट मोर. ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन?